Namaskar, good evening, and welcome to the 20th episode of Encounter with Alok, sponsored by Zozo DMC, a destination management based company out in England and Scotland. आज हमारे पास जो गेस्ट हैं is none other than Vishal Kumar, who was my senior and I could say one of my very good mentor and a guide who guided me. So let's connect to Vishal Kumar all the way to International Institute of Hotel Management, Kolkata. So I have sent him the invitation and let's wait for Vishal ji to join. बता दूं कि ये हमारे सीनियर रह चुके हैं and he was in Scotland with us. So he guided us when we came here. The first day, I can't forget that when we were here in Kighar Gaye and we had egg curry. Oh, so here he is. Let's see. I have accepted the invitation and let's see. I think so. He should be here any minutes from now. I think so. He's here. Let's see. Like, yes. Hi, Alok. Good morning. Namaskar, sir. Pranam karta hu. How are you? Namaskar. बहुत बढ़िया. And thank you so much for inviting me. And it's indeed a pleasure to be a part of a session with Alok, rather I should say, an encounter with Alok. Well, thank you so much, sir. It's means being all honest. I'm obliged that you accepted my invitation and you came on the show. Really obliged. Thank you. Pleasure. So how are things, sir? How is everything going on in Kolkata side and India side? Absolutely perfect. Yeah, as we all know that the world is a little stressed in terms of the pandemic across, but I believe people are getting used to it now, and people have started accepting it. What is going around, but at the same time, what is good to see that people have become more aware, and they have started taking all the necessary precautions, and hopefully, the life will be normal across the globe very soon. Very good. And how's Priyanka ma'am doing? Is she okay? Absolutely, yes. God's grace, everything is fine, sab badhiya, and we are trying And our level best. how is the Chutku? How is he doing? He is just becoming naughty day by day, so I think he is going on the footstep of his mother, rather, I should say. I can imagine. Okay. So let's start, sir. So there are three sections in the session, and the first section is about you, about your achievements. Second will be one from travel, and the third part is rapid fire round. Oh, that's what the scary one is, right? The scary one. You'll have fun. You'll have fun. So you good to go, Mr. Vishal Kumar? Absolutely, absolutely. Very good. So the first encounter question to Vishal Kumar on Encounter with Alok on episode number 20 will be this. So sir, please tell me from India, how has your journey been from IIHM Kolkata to Scotland and back to the premium where you studied from and you are here as a top level management? Mr. Vishal Kumar, over to you. Thank you, Alok. चलो मैं इस question को थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ. Let me take it little back. I come from a very small town in Bihar. That's where I am from, and my family used to be always a very science-oriented family. To be honest with you, my late father was a doctor. My mother, she is PhD physics. My elder brother is a doctor. And trust me, I'm the only halwai in my family today. Okay, being hoteli, and that's what my grandmother used to tell me. To be honest with you, you know. So, and I come from a very science-oriented background family. I myself, I'm a hardcore physics, chemistry, maths in class 12. So I always had this pressure of joining engineering as my profession. So एक दबाव होता है. To be honest with you, जिस part से हम आते हैं, in fact, you also come from the very similar part of the country. उस area में एक peer pressure बहुत होता है. हमारे समाज में लोग तुलना बहुत करते हैं कि अगर आपके चाचा का लड़का डॉक्टर है तो आपको भी डॉक्टर बनना होगा, या आपके पिताजी के बेस्ट फ्रेंड का बेटा अगर पीओ है तो शायद आपको भी उसको कॉम्पीट करना होगा. तो ये एक प्रेशर था और समाज में काफी कंपैरिजन होती है, और
अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में लोग मेडिकल इंजीनियरिंग, सीए, पीओ, इसके अलावा शायद कुछ ज्यादा जानते नहीं, ये फैक्ट। तो जब मैंने क्लास 12th का एग्जाम दिया, एंड टू बी ऑनेस्ट विथ यू, आई वाज नॉट अ वेरी स्कॉलर स्टूडेंट, आई वाज नॉट बैड, बट आई वाज नॉट अ वेरी स्कॉलर स्टूडेंट। मुझे ये तो पता था कि मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, ये पता नहीं था कि क्या बनूंगा, बट ये बिल्कुल पता था कि मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं बनूंगा। तो आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग विच आई एम गुड एट। तो मैं शुरू से बचपन से ही थोड़ा स्पोर्टी था, थोड़ा क्रिएटिव था, मुझे लोगों से बातें करना अच्छा लगता था, इंटरैक्ट करना अच्छा लगता था। तो आई डिसाइडेड ऑफ डूइंग समथिंग which which is similar to or at par with my own qualities. तो अब मैंने होटल मैनेजमेंट चुना, and luckily I joined International Institute of Hotel Management as a student. और आई थिंक वो दिन था और आज का दिन है जहां से मेरे जीवन का एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। उन दिनों में आईआईएचएम भी बहुत छोटा हुआ करता था, हमारे सिर्फ एक ही कैंपस थे उस जमाने में, और कम बच्चे हुआ करते थे। बट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जब मैं पहली बार आया आलोक, तो ये फैक्ट है, और आई एम श्योर यू विल अग्री, कि छोटे शहर से होने पे क्या होता है ना, एक आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो होता है, डर लगता है कि दुनिया से बातें कैसे करें, how we will face the world, and especially that too when you have to move at par with the students who are from metropolitan, probably who are from convent schools, probably who are very very outspoken and who can beat you at any time. तो ये डर था मेरे मन में। तो जब नया नया आया तो एक फियर फैक्टर था कि बाप रे, कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया मैंने। बट आई मस्ट थैंक माय कॉलेज, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, कि उस जमाने में भी जो हर सपोर्ट मिलनी चाहिए एक स्टूडेंट को, चाहे वो एकेडमिक सपोर्ट हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो, वो इस चीज को समझते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो इस समाज के अलग अलग वर्गों से आते हैं, और उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना 3 साल के पीरियड में बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। बट आई बिलीव मेरे कॉलेज ने इस मामले में बहुत बेहतरीन काम किया, एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग, गॉड्स ग्रेस, मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और मैं थर्ड ईयर करने स्कॉटलैंड चला गया। उस समय हमारा जो एसोसिएशन हुआ करता था वो क्वीन मार्गरेट यूनिवर्सिटी कॉलेज से था, जहाँ से आप भी पढ़े हैं, और उस कॉलेज में हम लोग थर्ड ईयर में गए। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लर्निंग फेज रहा मेरी लाइफ का, और अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने कॉलेज की बदौलत 8-9 साल स्कॉटलैंड जैसे ब्यूटीफुल कंट्री में अच्छे अच्छे कंपनीज में बड़े बड़े पोजीशन में काम करने का मौका मिला। तो एक बेहतरीन जर्नी था, और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, इस इंडस्ट्री में कुछ और कंट्रीब्यूट कर सका, एंड देन इवेंचुअली 2012 में मैं इंडिया वापस आ गया। तो ये थी मेरी जर्नी इंडिया आईआईएचएम से स्कॉटलैंड तक। But I will conclude to this sir that कि आपने वहाँ रहते हुए, I still remember कि when you were operations manager next to general manager of Murrayfield Stadium, जहाँ की if I'm not wrong 50,000 आदमी बैठते या 60,000 एक साथ। So when Six Nation rugbies used to be done over there, so means I still remember you gave the opportunity to all the IIHM students. तो आप क्या करते थे कि पिक करते थे IIHM वाले स्टूडेंट, हाँ कहाँ विशाल सर नौकरी चाहिए, अच्छा कहाँ है IIHM का, हाँ ले आ। तो that was one of the best thing you had कि you took the college people around you and among you, means वो सबसे अच्छा था, बहुत ही अच्छा दौर था वो हमारा। और मुझे आज भी याद है कि 2-2 बजे आपके दरवाजे पे खटखटा के, सर प्रोजेक्ट बनाना है क्या करें, कि एकेडमिक में you know how we were। तो आलोक एक बात बोलूंगा, मैंने अपनी माता जी से खासकर ये चीज सीखा है कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे आप जिस परिस्थिति में भी रहे, मैं स्कॉटलैंड की बात करता हूँ थोड़ा सा, और ये मैं बहुत पॉजिटिव सेंस में बात करता हूँ। अपने इस ऑलमोस्ट में 40 साल की उम्र में मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन दौर देखे हैं, और मैंने अपनी जिंदगी के बहुत मुश्किल दौर भी देखे हैं। बट एक चीज जो मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती थी, और मैं चाहूंगा
कि आपके जो भी ये लिसनर्स हों इस चीज को शायद थोड़ा गौर फरमाएं कि इंसान का जो कर्म होता है ना वो आपके साथ हमेशा रहता है, चाहे आप अच्छे दौर में रहें या बुरे दौर में रहें। और शायद अगर आपके हाथ में भगवान ने वो थोड़ी सी क्षमता दी है और आपके कारण किसी और के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आए, आई थिंक इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है। बहुत और बढ़िया। आपके ये कर्म आपके बुरे दिनों में जरूर जरूर और जरूर काम आते हैं। और बहुत मैं इस बात को बहुत दिल से सर्टिफाई करता हूँ कि धैर्य न खोएं, किसी के बारे में बुरा न सोचें, जानबूझ के किसी का दिल न दुखाएं, अपने कर्मों पे चलते रहें एंड बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपके संस्कारों के द्वारा और आपके माँ बाप के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से आप जिंदगी में जरूर और जरूर तरक्की पाएं। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा तरीके से साहब, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कर्म करते जाइए, कहते हैं ना कि कर्मणे वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। बहुत बढ़िया। So we'll move to the question number two, sir. So question number two is about strategy management. So how important was strategy management and business development, which helped in boosting up your career? How was that? सबसे पहली बात है, अगर आप चूंकि आप मेरे स्कॉटलैंड की जर्नी से भी बहुत फेमिलियर हैं, आपने मुझे बहुत करीब से देखा है। मैं ये बात खासकर मेरे से जो बड़े लिसनर्स हैं उनके लिए नहीं, बट जो यंग बच्चे हैं जो आपका एपिसोड देखते हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे वो यूके में हो, मुझे बिफोर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैं सबसे पहले बात करूंगा स्ट्रैटेजी की। क्या होता है कि खासकर जो आज का जनरेशन है वो बहुत ही इम्पेशेंट है, या फिर डू नॉट गेट मी रॉन्ग, शायद सक्सेस को ये जनरेशन बहुत लाइटली ले लेता है। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है आपके करियर में इज टू नॉट टू प्लान फॉर व्हाट इज गोना हैपन 10 years from now. Let's plan how you can change yourself in 3 months from now. So a gradual upgradation is very, very, very vital and it's very, very, very important. क्योंकि सबसे पहले अगर आप अपनी छोटी छोटी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को और मजबूत कर पाएंगे एज ए प्रोफेशनल। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अगर तुमको बॉर्डर पे जाके लड़ाई करना है तो उस लड़ाई में it's not only about the AK-47 or the weapon which you carry in your hand. It's about that small things which will help you to utilize that weapon. Now, what are those small things? Number one, your vision. Number two, your focus. Number two, your courage. Number four is your intellect. When to use it, how to use it. तो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट आप उसके बेस्ट एग्जांपल हो, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस, आई रियली मीन इट, that gradually I have seen you as a student and today I see you as one of the most successful entrepreneur IIHM has ever produced. So that's how I see things. But the basic factor which is unique about is a gradual movement. Take it, let's take life one by one. It's always good to dream big. बट क्या होता है कि आपके पास कितना भी नॉलेज हो, मैं बहुत लोगों को देखा हूं और बहुत लोगों को बहुत करीब से देखा हूं जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, और आपको थोड़ा हंसी आएगा इस बात को सुन के। ये बात मैं अपनी माँ को भी बोलता हूँ। अगर आप दिन भर रामायण पढ़ते हो, आप दिन भर महाभारत पढ़ते हो, या आप दिन भर कहीं नौकरी करते हो, आप लीडरशिप के बारे में शायद आलोक कुमार सिंह 10 किताबें पढ़ चुका होगा कि लीडरशिप होता क्या है, बट अगर उस ज्ञान को, उस नॉलेज को अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपने लाइफ में तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं। So it is the key here is to implement the knowledge which you have earned over the period of time. तो हमें slowly and gradually and definitely अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आपकी जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग होनी चाहिए वो आपके अपने व्यक्तिगत ताकत और कमजोरियों के आधार पर होनी चाहिए। Today I might dream to become Mukesh Ambani, but I don't have that quality in me. So what quality I have or what I can improve, on the basis of that, you should plan your life, you should plan your future, you should plan your business. So strategy management, I believe, is all about observation.
It's all about thinking, and it's all about the art of implementing your knowledge. If you don't implement your knowledge, if you don't implement your art, I believe that will not be as fruitful as you want it to be. वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, उम्दा, बहुत उम्दे तरीके से आपने जवाब दिया है. सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे होगा क्योंकि हम आईआईएचएम से हैं और आईआईएचएम पे सवाल ना हो तो मजा नहीं आएगा. सो सर, सो हाउ हैज आईआईएचएम helped you in moving your career ahead and what's unique about IIHM? आज आपके द्वारा मैं जानना चाहूंगा. और सर, उससे पहले शुरू करने से पहले अगर वो स्लोगन हो जाए विस्की वाला तो मजा आ जाए. Okay, I think we should do it together rather, and I'll do it at the count of 3. It will be 1, 2, and 3. It's whiskey, soda, lollipop, IIHM on the top. Here you go, sir. Absolutely, indeed. आलोक, मैं इस चीज को थोड़ा बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा. बिलीव मी, आज मैं जो भी हूँ, मैं प्रोफेशनल एंगल से इस बात का जवाब दे रहा हूँ. अगर मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, इस प्रोफेशनल इंडस्ट्री में अगर मैंने जो थोड़ा सा नाम कमाया है या जो थोड़ा सा अपनी पहचान बनाई है, वो 100% मैं IIHM को समर्पित करता हूँ. Because, and it is not because I was a student, and it is not because I am working just now with IIHM. ये मैं बात बहुत दिल से बोलता हूँ, क्योंकि देखो, कॉलेज चाहे जो भी हो, मैं ये बात हमेशा बोलता भी हूँ कि आपकी गाइडिंग फैक्टर, हम लोग बहुत लकी थे कि हमें अपने जीवन में बहुत अच्छे टीचर मिले, बहुत अच्छे मेंटोर मिले. और ये भी एक सच है कि आज भी जो हमारे चीफ मेंटोर हैं, डॉक्टर सुबर्णो बोस और मिसेस संजुक्ता बोस, जो हमारे डायरेक्टर हैं, दे आर वेरी विजनरी पीपल. वो एक चीज को जरूर ध्यान में रखते हैं कि इस कॉलेज में जो भी हो, जितना भी हो, उस चीज का अगर डायरेक्ट बेनिफिट बच्चों को ना मिला तो वो करने का कोई फायदा नहीं. ये बहुत बड़ी चीज है. ये दिखाता है उनका समर्पण इस कॉलेज को बड़ा बनाने में. और इतिहास गवाह है कि 4 बेडरूम से शुरुआत किया था इस कॉलेज का उन्होंने, और आज हमारे कैंपसेस हैं कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद एंड गोवा. ओनली इन इंडिया वी हैव अ कैंपस, फैंटास्टिक कैंपस इन बैंकॉक. तो अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, मैं बड़ा इंट्रोवर्ट था और बहुत अच्छे टीचर मिले हमें अपनी लाइफ में. बहुत अच्छे सीनियर्स मिले जिन्होंने हर कदम पे हमारा साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया. और ना ओनली सिर्फ हमारी पर्सनालिटी को लेके, बट कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ को भी लेके. मैं इस बात को बहुत खुशी से बोलता हूँ कि पिछले 15, 18, 20 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं. मेरा एसोसिएशन मेरे कॉलेज से तब भी था जब मैं यूके में काम करता था. मेरा प्यार इस वर्ड के प्रति, और जैसा कि आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि हाँ, अगर कोई मुझे बोलता था कि मैं IIHM से हूँ, तो एक जैसे परिवार के प्रति किसी भी इंसान का भाव होता है, वो ऑटोमेटिक मेरे अंदर आता था. और मुझे लगता था कि शायद अगर मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं, उसके परिवार के किसी व्यक्ति के लिए कुछ कर सकूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी. तो IIHM उस जमाने में भी और आज भी मेरी नजरों में भारत का नंबर 1 कॉलेज था, नंबर 1 कॉलेज है और नंबर 1 कॉलेज ही रहेगा. अब आपके दूसरे प्रश्न पे आता हूं कि हम अलग क्यों. हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन जो है आलोक, एक बहुत सिंपल एजुकेशन है. मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ. मुझे लगता है ये एकमात्र इंडस्ट्री है जहाँ पे हम दिमाग से ही नहीं बल्कि दिल से भी काम करते हैं. और इस प्रोफेशन को अगर आप एंजॉय नहीं किए तो आप शायद सक्सेसफुल नहीं होंगे. तो IIHM का जो टीचिंग पैटर्न है, खासकर अगर मैं कहूँ फर्स्ट ईयर से लेके जो थर्ड ईयर का जो जर्नी होता है ना, कि एक क्लास 12th पास बच्चा आया, उसको बेसिक्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी पढ़ाया, लेकिन थर्ड ईयर में जाते जाते इंडस्ट्री आपसे बहुत एक्सपेक्ट करती है. इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है कि आप टीम वर्क सीखें. इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है कि आप प्रोएक्टिव बने. इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है कि आप आपके अंदर अटेंशन टू डिटेल हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो
कि आप गेस्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। आप इस बात को बड़ी भांति जानते हैं that in our industry you never know what problem you will encounter. Definitely. तो IIHM का जो सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है a very good and balanced blend of classroom education and the exposure जो इंडस्ट्री के लिए उनके स्टूडेंट्स को रेडी करता है। आई एम श्योर आपने जरूर सुना होगा यंग शेफ ओलंपियाड के बारे में, जी 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 जी। जो कि इस प्लैनेट का सबसे बड़ा culinary competition है। आपको जान के खुशी होगी आलोक कि हर साल हमारे कैंपस में more than 60 countries, let me just quote it here, which is more than Commonwealth. Oh my God. More than 60 countries के पार्टिसिपेंट आते हैं, 10 से 15 दिन का समय बिताते हैं, इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। और ये प्लेटफॉर्म, अगर आप कहोगे कि कंपटीशन क्यों है, कंपटीशन का एक अपना महत्व है, कंपटीशन का एक अपना स्टेटस है, बट डॉक्टर बोस के विजन को मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा। उनका इस कंपटीशन को स्टार्ट करने से पहले एक विजन था उनके मन में कि मैं अपने हर बच्चों को दुनिया नहीं दिखा सकता हूँ, ले जाके फिजिकली ले जाके उनको नहीं दिखा सकता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्यों ना मैं दुनिया को उनके पास लेके आ जाऊं। तो आज जो 60 देश के लोग आते हैं, उनसे हमारे स्टूडेंट्स को एक बेहतरीन मौका मिलता है जहां पे वो इंटरेक्ट कर सके, नेटवर्क कर सके, सीख सके, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन इज नॉट अ कंट्री सेंट्रिक एजुकेशन। हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशन जो है वो एक ग्लोबल प्रोफेशन है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स मिलेंगे। और ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे कॉलेज का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, पहले वर्ड को हम अच्छे से जस्टिफाई कर सकें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वो एक्सपोजर मिले। और दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है, जो किसी और कॉलेज में नहीं, वो है हमारा क्वालिफिकेशन, जो डिग्री हम देते हैं। जो इंडियन डिग्री, चाहे वो नेशनल काउंसिल हो या और भी कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस हो, वो इंडियन डिग्री देती है। जैसे हम भी देते हैं बीएससी इन होटल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सो ऑन। तो अगर इंडियन डिग्री की आप बात करेंगे, इंडियन डिग्री आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये पढ़ाता है बेसिक्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, एबीसीडी ऑफ हॉस्पिटैलिटी। बट हमारा जो मेन डिग्री है, जो मेन क्वालिफिकेशन है, विच इज अ इंटरनेशनल डिग्री, a degree in international hospitality management from University of West London, which you are very much aware about, is one of the finest college you have in London. और ये डिग्री का जो कंटेंट है, ये आपको पढ़ाता है अबाउट द मैनेजमेंट साइड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, चाहे वो ग्लोबल मार्केटिंग हो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो, इवेंट मैनेजमेंट हो। तो आप देखेंगे कि 3 साल बाद जब बच्चे इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, तो हमारे बच्चे जो होते हैं इस कॉलेज के, या तो वो बाकी कॉम्पिटिटर से अच्छी जगह से अपना करियर स्टार्ट करते हैं, या अगर वो सेम जगह से भी करते हैं तो उनके करियर का जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू द अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कॉलेज। इसके अलावा भी इतने इवेंट्स हैं, चाहे वो वाइन टूर हो, जहां पे हम अपने बच्चों को इन द विनयार्ड्स ऑफ इटली, फ्रांस एंड स्पेन लेके जाते हैं। ऑल्दो आपको जान के खुशी होगी कि आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं, उस कॉलेज में आज हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन वाइन लैब है, सबसे बेहतरीन। IIHM कोलकाता की बात कर रहा हूँ। बट इसके अलावा भी हम बच्चों को एक फिजिकल फील के लिए, एक रियल फील के लिए, उनकी मेरिट के हिसाब से उनको फ्रांस, इटली, स्पेन लेके जाते हैं, जहां पे वो विनयार्ड में 15 दिन का समय व्यतीत करते हैं एंड रियल वाइन मेकिंग सीख के आते हैं। इसी तरह culinary टूर है, इसी तरह इरेस्मस प्रोजेक्ट है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको शायद इस 40 मिनट में तो नहीं दे पाऊंगा। इसके लिए आपको 2 घंटे का सेशन करना होगा हमारे साथ। और बिलीव मी काफी अलग, काफी काफी अलग। नहीं सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, यूनिक तो है ही। और बीइंग ऑनेस्ट, जो भी हमने बनाया, एंटरप्रेन्योर बने, चाहे कुछ बने यहाँ आके, इट्स बिकॉज ऑफ IIHM। और मेरे को तो ये भी याद है कि मेरा तो मैडम, मेरी जिंदगी में मैडम बोस का बहुत बड़ा हाथ है,
क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था और मेरा लोन नहीं हो रहा था, तो आपको शायद पता है कि नहीं, अविनाश बताया है कि नहीं कि सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल, अविनाश कुमार इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड एंड मींस जब हम कॉलेज आए एंड आई मींस हमारा प्रोजेक्ट में पूरा बहुत हेल्प किया. So you along with Avinash, madam. So what happened is कि जब मैं यहाँ आ रहा था लोन नहीं हुआ, सबका लोन लग गया, सबका वीजा वीजा करने चला गया. I was the only one जिसका नहीं लगा था. एंड मैडम बोस ने कहा डजंट मैटर, आई एम विथ यू, डोंट वरी. उन्होंने मेरे को जो बोलते हैं ना कि हौसला दिया. और मेरे चलते एक रूल एंड रेगुलेशन बदला गया, अब है कि नहीं पता नहीं. मेरे चलते वो सेशन एक दिन लेट हुआ, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है. तो मैं उनका जो अहमियत है मेरे लाइफ में, इसीलिए whatever happens for me, Madam Bose will always be on the top. So इस कॉलेज की एक खासियत है आलोक, दैट ये आपको सिर्फ प्रोफेशनली नहीं जोड़ता है, ये आपको दिल से जोड़ता है. और इस कॉलेज से आपका रिश्ता शायद कभी खत्म नहीं हो पाता है. ये अपने बच्चों को अपने परिवार की तरह ट्रीट करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के हर सुख दुख में उनके साथ खड़े होते हैं. गुस्सा होना पड़ता है तो हम गुस्सा भी होते हैं अपने बच्चों से, ऐसा नहीं है कि हम नहीं होते हैं, बट अगर उनको सही रास्ता दिखाने की बात है तो इस कॉलेज का हर एक मेंटोर, हर एक टीचर अपने बच्चों के साथ हमेशा जुड़ा रहता है. और आपको एक मैं और कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा. ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, आप देख रहे होंगे बहुत कॉलेजेस की क्या हालत है, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है. IIHM 23 मार्च को लॉकडाउन अनाउंस हुआ था और 25 मार्च मतलब विद इन 48 आवर्स हमारे टीचिंग पूरे प्लेटफॉर्म को ही हम लोगों ने चेंज करके डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया 2 दिनों के अंदर, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट. और आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो शायद हम लोगों को भी कभी रास्ता दिखाते हैं, जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, आपको जान के खुशी होगी कि इस पैंडेमिक में डॉक्टर सुबर्णो बोस के विजन के अंतर्गत हमने एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है साहस. जी 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 जी. अब ये साहस क्या है? ये हम अपने बच्चों को सिर्फ एम्प्लॉय ही नहीं बनाना चाहते, हम अपने बच्चों को एक एम्प्लॉयर भी बनाना चाहते हैं. So this साहस is all about educating them how to become a successful entrepreneur like आलोक कुमार सिंह. और इसके लिए ना ही सिर्फ शिक्षा देते हैं, ना ही सिर्फ मेंटरशिप करेंगे, बल्कि एक बहुत बड़ी रकम जो सिर्फ साहस इनिशिएटिव के लिए डॉक्टर बोस ने रखा है, जो उस डिजर्विंग स्टूडेंट्स को मिलेगा जो आज से 3 साल बाद अपने आप को आलोक कुमार सिंह के पद चिन्हों पे ले जाना चाहेंगे, जो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे. तो ये हिंदुस्तान का पहला कॉलेज है जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएगा. आपने बोल के यू मेड माय डे, थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो सर कुछ शब्दों में बताइए कि हाउ आप लोग मॉड्यूल्स कैसे ले रहे हैं और पैंडेमिक में ये कैसे अफेक्ट कर रहा है. सो हाउ यू गाइस आर डूइंग द मॉड्यूल सेशंस विद द स्टूडेंट इन दिस पैंडेमिक एरिया टाइम. Absolutely, the students are all attending online classes, but you'll be happy to know that along with the students we are spending a lot of time on making these online classes more interesting. क्या है आलोक, बोलना बहुत आसान होता है, बट ऑनलाइन क्लासेस आप 1 2 3 अगर नॉर्मल बोरिंग सेशन करोगे तो बच्चों का कंसंट्रेशन चला जाता है. तो इन सेशंस को हम लोग बहुत ही इंगेजिंग सेशन कर रहे हैं. बच्चों को प्रैक्टिकल्स भी जो पॉसिबल हो रहा है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा वो कर रहे हैं. और हर मॉड्यूल का डिटेल्ड फॉलो अप होता है, बच्चों को इंगेज किया जाता है, उनको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं एंड प्रोजेक्ट्स वर्क देता है, जहां पे एंटायर टीचिंग सिस्टम को इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है. एंड इनफैक्ट आपको जान के खुशी होगी कि ऐसे बहुत सब्जेक्ट हैं जो शायद हम फ्यूचर में ऑनलाइन ही पढ़ें. तो ये है इफेक्ट ऑनलाइन टीचिंग का. और हमारे टीचर्स, हमारे जो फैकल्टीज हैं, उनको भी हम लोग रेगुलर टाइम टू टाइम अपग्रेड करते हैं, उनको भी वो बेसिक टिप्स मिलता रहता है जिससे ऑनलाइन क्लासेस और इंटरेस्टिंग हो सके. तो हमारी जो मॉड्यूल है वो बहुत अच्छे से स्मूथली चल रही है. बट
nevertheless, वो personal touch तो of course missing है, and we are hoping, we are praying कि बहुत जल्द हम बच्चों से मिल सके और So बच्चों को face to face मिल सके. when do you think that the sessions are going to start? Means face to face, like college wala? See, looking at the situation again, this is something which is a very difficult question to answer. It will completely depend upon how the effect of a pandemic and corona will deteriorate with time. And if things will be normal, hopefully we are expecting it to open as soon as we get a permission from the government. So we are Because all from set, next all prepared. because Yes. from next Thursday onwards, England is going on lockdown, on the Yeah, second national lockdown. I just read it I think today morning I got this message from one of my friend, and I think again it's going to be 1 month if I'm not wrong. Yeah, definitely. So, sir, पहला राउंड आपने बहुत उम्दे तरीके से पास किया, and I will give you full Oh, marks, no doubt about it, 100 of wow, 100. thank you. Yeah. So we move to round number two. In very quick words, can you please tell me which is your Favorite destination as a holiday where I want to holiday? Yes, sir, spend? as a holiday, yeah. Okay, okay. See, आलोक, अगर मैं सच बोलूं तो मैं दुनिया ज्यादा घुमा हूं, हिंदुस्तान कम घुमा हूं, है ना. दुनिया थोड़ा ज्यादा देखा है, बट अनफॉर्चुनेटली जिस प्रोफेशन में हूं मैं इंडिया थोड़ा कम घुमा हूं. और बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेशन आप थोड़ा हंस भी देंगे मेरे जवाब को सुन के, बट मैं दो जगह है ऐसी जहां पे मैं अपनी छुट्टियों को बहुत एंजॉय करता हूं. और ये सच है, ये मैं बात अपने दिल से बोल रहा हूं, ना कि सिर्फ अच्छा सुनने के लिए. एक जगह जो है जहां पे मैं शायद हर छुट्टियों में जाना चाहूं, वो है मेरा घर, जो अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रोफेशन के कारण मैं अपने जीवन में ज्यादा समय अपने माँ बाप के साथ नहीं बिता पाया, अपने परिवार के साथ नहीं बिता पाया. मैं अभी भी नहीं बिता पाता हूँ. तो मेरी जब भी छुट्टी मुझे मौका मिलता है, चाहे वो 2 दिन का भी क्यों ना हो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ. और दूसरा एक जगह है हिंदुस्तान में जहां जाके मुझे पर्सनली बहुत शांति मिलती है और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ उस जगह को. उस जगह का नाम है जगन्नाथपुरी. तो वो एक जगह है जहाँ पे मुझे असीम शांति मिलती, बहुत शांति मिलती. और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं साल में 1-2 चक्कर लगा ही लूँ और अपने स्ट्रेस को कम करूँ. तो शायद ये 2 डेस्टिनेशंस हैं जो मेरे फेवरेट हैं. ऐसे तो दुनिया बहुत खूबसूरत है. दुनिया में आप जहाँ रहते हो उसको तो खुद ही धरती पे एक स्वर्ग माना जाता है उस जगह को. मैं आपको जान के खुशी होगी और यहाँ पर शायद आप हँस भी देंगे कि मैं एडिनबरा को ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ बनिस्पत की कलकत्ता को. तो यही यही बिजी शेड्यूल है, बिजी लाइफ है. But yeah, these are my two favorite destinations where I would love to go for my holidays. Very nice, sir. Very nice. Very nice. So we move on to round number three, the last round, rapid fire round. You good to go, sir? Yeah. I'll try my best. No worries. So the first encounter, rapid fire question to Vishal Kumar will be this: biryani or litti chokha? Of course, litti chokha, eyes closed. Very good. On scale of 1 to 10, how good are you in driving? I'll consider myself as, I'll give myself as 8. You know, 8, yeah, 8. If you could be any animal, what would it be and why? I'll request you to kindly repeat the question once again. If you could be any animal, what would it be and why? I'll prefer to be a dog because I believe they're the most loyal people on this, loyal creature on this planet Earth, and their love for their loved ones around them is absolutely amazing. And I think that's one animal which is a true symbol of love and true symbol of loyalty. So here you go. Sir, आपके यहाँ भी था ना dog? Pet था Yes, ना? मेरे पास. Yeah. How old were you when you had the worst haircut ever? What style was it? First haircut. I'll tell you something here. Hanji. I mean, I'll just twist it if I'm not wrong. The first fashionable haircut you're talking about? Yes. You're Oh, right. yeah. Yes, the first fashionable haircut I had when I was in class 9th. Okay. And in those days, I paid 25 rupees for my haircut, for which I got a real-time bashing from my dad. I still remember because 25 rupees I'm talking about 1997, 1998 was quite a big money. And trust me, and I used to call it as a army cut or something, if I'm not wrong. Like अजीब सा होता था fashionable,
कटोरा So कट, कटोरा कट टाइप. exactly. Katora cut, whatever you want to name it. Yeah. Okay, now this one is tricky. You have to be very, आपको सोच के बोलना पड़ेगा. Your favorite Okay. student of all time. अगर नहीं My बोलना तो favorite, पास भी बोल सकते हैं. my favorite student of all time. I'll pass this question because probably I have got many. I knew it. I have many, you know, and they're very close to my heart. They're very sincere. They love me a lot. So, or the worst part is कि माँ बाप अपने बच्चों को ना ranking नहीं दे सकते हैं. So they'll be a little disappointed. Beautiful, beautiful. Okay, what is better, being organized or attention to detail? I think being organized or attention to detail. I'll give more priority to attention to detail. Kyun? Because if you give attention to detail, it has a direct linking with getting yourself organized. क्योंकि जब आप attention to detail देखते हैं तो आप हर चीजों को बहुत नजदीक से evaluate करते हैं. बिल्कुल सही. which eventually helps you to take the right steps, you know, in regards to the situation you are facing. Very good. If you opened a restaurant, what kind of restaurant cuisine it would be? That will definitely depend upon where I'm opening and who are my target market, what is the locality. You do a SWOT analysis and stuff, yeah. Exactly. But India mein kholunga, to of course I'll go with Indian because that's what my strength is. You know? Strength is very good. Okay, now here we go. This one is very nice. So remember, your wife would be listening. What's the best quality of your wife? She doesn't interfere a lot in my life. You know, I'll give you the example. We both give that space to each other. I'm sure you know that. I don't have to tell you. As far as the nature is concerned, me and my wife, we are north and south. I'm an extremely extrovert person, and she's a very reserved character, and you know that very well. Yeah. So we don't interfere, or probably we don't question too much to each other when it comes to the way we live our life. So this is a very unique thing, and she has that quality, of course. Okay, cricket, hockey, or badminton? I'll give first love as cricket. Although I play badminton better than cricket, but yeah, cricket will be my first love. Because you used to play cricket, means in stadium near Murrayfield. Oh my God! तब बोलते थे विशाल सर किसकी टीम में, अविनाश एक विशाल दोनों जिसमें है और जीत गया, और फिर कुंतल. I'm glad तुमको बचपन में वो सब बातें याद है. बहुत दिन हो गए इन चीजों को. नहीं वही है ना सर, मेमोरीज टू चेरिश. अब वही सब बातें करके अपने को याद कर लेते हैं. Okay, completely. Arrange in order, because as you mentioned cricket, so arrange in order. Dhoni, Raina, Kohli. Okay. Raina, Kohli. Okay. So I think number one liking and to third. Okay. My number one liking will be definitely MS Dhoni. And number two will be number two. I'll tell you something, to be honest with you. Number two, I'll put Virat Kohli, and number three, I'll put Raina. Although I really like Raina. Suresh Raina is very favorite of mine. I really like him as a player, but definitely Dhoni for his commendable contribution in the Indian cricket. But I must also say this, that a captain is only as good as his team. He was equally blessed to have people like Virat Kohli, Suresh Raina, Rohit Sharma, and so many others, which made Dhoni today. So, you know, it's, but liking wise, Dhoni, Virat, and Suresh. Instagram or Twitter? Twitter. Thank you, sir. So you have done pretty well in round number 3 as well. और इसी के साथ मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया, और क्या बोलूं आपको, क्योंकि आप मेरे सीनियर भी रह चुके हैं, and being very highly obliged you have come. So sir, the closing statement to my viewers who would be listening and who will listen, please. Closing statement from Mr. Vishal. First of all, I would like to wish all your viewers a very happy Deepavali in advance, which is just round the corner.
So please enjoy the festival of light with your family. Stay safe. Do take care of yourself. And let's because it's a closing statement, and we are still in the pandemic and kind of corona thing around us. So show some humanity. Take care of the people. Respect people around you. And I strongly believe that the best hand on this planet Earth is a helping hand. So please help people who needs your help. Bring some smile on their face, and I think that's the best thing you can do as a human being. Success has no definition. Success has a different definition in different phases of life. But the best definition of success is spreading happiness around you, and keep your family and loved ones happy who are closely associated. A big thank you to you once again, Alok, for inviting me. Trust me, it was indeed a pleasure to be a part of this show. And you also keep shining, keep rocking, and keep inspiring a lot of young people who look up to you. And God bless. Stay grounded the way you are. And I'm sure you have heights to achieve in life. We have just started. So there are a lot more achievements which is just round the corner. So thank you so much. Thank you so much, sir. Much appreciated, much obliged. This was Vishal Kumar, live from IHM, Kolkata. Dhanyawad, namaskar, Jai Hind.